Hello everyone. I hope you all are good and you are doing practice on your Python language also. So today our topic is mathematical function. So till now we have covered most of the part of your chapter 7, that is data handling. So today we will learn about the mathematical functions. Right? Suppose you want to use some mathematical functions in your program. So how you can do that in your Python language, we will discuss today, right? So I have written some content here. As you know, we always start, we write a single line comment with the help of hashtag, right? So all these are what your comments, okay? So first is first I've written that today we will learn about the mathematical function. Next I've written before using mathematical functions we have to import math module, right? Like if you want to use some your mathematical functions in your program, for that you have to import it from the standard library of your Python language, right? For that we have to import math module. All the functions which are mathematical are present in your math module. So before using the mathematical function, we have to import our math module, right? So how you can import a math module? So this is the way. So I've written here that if you want to import your module from the standard library of your Python language, you have to write import math. Import is a keyword and math is the name of your module, right? So we can import module by simply writing import module, where import is a keyword and math is a module name, right? Next I've written whenever you will use math function, you have to write math dot function name, right? So whenever you use, after importing math module, when you use a math function, this is the way you have to write, right? Math module name dot, this is the dot operator, this is the dot operator, and after that you have to write down the function name that you want to use from the math module, right? But suppose, whenever we have to use math function, we always have to write math before the function name. So for the simplicity, we can change the name of module like this: import math as m. So after writing this line, your math module will change to m, right? You are importing your math module in which way? By which name? That is m. ओके, इस लाइन का मतलब क्या है कि आप मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हैं किस नेम से? एम नेम से. यू आर इंपोर्टिंग मैथ मॉड्यूल विद द नेम एम. ठीक है. सो आई हैव रिटन हियर. सो this is all about the theory part of the mathematical functions, that how you can import a math module and how to write, or what is the way to use maths function from the math module, right? Now we will start, or we'll discuss different mathematical functions. So I have written each and every functions here. So first of all, we have to import the math module like this. I've written here, before using mathematical function we have to import math module. So this is the way: import math as m. What I am doing here, I am importing my math module with the name m. ठीक है. You can import your math module by any name. ठीक है. अगर आपको सिंपल मैथ ही रखना है तो आप सिंपल लिखेंगे import मैथ. लेकिन क्या होगा कि जब भी आप फंक्शन को यूज करेंगे आपको हमेशा मैथ यूज करना पड़ेगा, है ना? मैथ डॉट फिर फंक्शन नेम, मैथ डॉट फिर फंक्शन नेम.
ठीक है। सो बार बार मैथ लिखने से अच्छा है कि हम उसका शॉर्ट फॉर्म लिख लें। ठीक है, सो दैट्स वाई आई एम importing मैथ मॉड्यूल विद द नेम m, just for the simplicity, that's it. Now very first function is ceil function always gives upper bound value. Now ceil function is what? It always gives the upper bound value. There is the difference between ceil function and floor function. They are opposite to each other. Ceil function always gives the upper bound value and floor function always gives the lower bound value. Now what is the meaning of upper bound and lower bound? So let me show you. Run this program. Now compare the values. So this is the output. Okay, now compare the value. Ceil value of 2.5, ceil value of 2.5 is 3. ठीक है, ceil value of 2.0 is 2, ceil value of 2.1 is 3. सील वैल्यू क्या है कि वो अपर बाउंड वैल्यू देगा। इस अपर बाउंड का मतलब क्या है कि अगर 2.0 से अगर हम कोई एक वैल्यू लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 2.5 लिखा, तो 2.5 को वो राउंड फिगर करके वो क्या देगा 3। वैसे 2.0 को वो 2 रखेगा। ठीक है, लेकिन 2.0 से जैसे ही आप एक पॉइंट ज्यादा लिखेंगे, जैसे यहाँ पे आपने लिखा है 2.1, सो यू आर गेटिंग 3 हियर। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ अपर बाउंड। अब सेम यहाँ पे देखिए, फ्लोर फंक्शन ऑलवेज गिव्स द लोअर बाउंड वैल्यू। सो फ्लोर ऑलवेज गिव्स द फ्लोर वैल्यू ऑफ 2.5 इज 2। ठीक है, वो लोअर जा रहा है, नीचे जा रहा है। ऐसे ही फ्लोर वैल्यू ऑफ 2.0 वो सेम रहेगा। ठीक है, 2 रहेगा। फ्लोर वैल्यू ऑफ 2.1 इज 2। ठीक है, मतलब नीचे की तरफ। अगर जैसे हम देखें कि क्या होता है कि जो आपका, जैसे आपने यहाँ पे कोई नंबर लिखा, जैसे 2.5 लिखा, तो अगर इसकी हम अपर वैल्यू देखेंगे, अपर वैल्यू, तो अपर वैल्यू हमेशा क्या होगी 3 होगी। अगर इसकी लोअर बाउंड देखेंगे, लोअर वैल्यू, तो लोअर वैल्यू क्या होगी 2 होगी। ठीक है, लोअर वैल्यू मतलब 2.5 से कम, मतलब 2.5 जो है वो ग्रेटर देन होगा इससे, और जो अपर वैल्यू है वो लेस देन होगा। ठीक है, तो मतलब क्या है कि कोई एक नंबर है, कोई एक नंबर है, तो नंबर जो है वो ग्रेटर देन होगा किससे, लोअर बाउंड से। ठीक है, लेकिन लेस देन होगा किससे, अपर बाउंड से। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया 2.5, तो ये 2.5 ग्रेटर देन होगा 2 से, लेकिन लेस देन होगा किससे, 3 से। समझ में आया? तो ये क्या है, ये लोअर बाउंड है इसका, ये नंबर है, और ये आपका क्या है, लोअर बाउंड। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सील एंड फ्लोर फंक्शन। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे वी हैव सीलिंग फंक्शन, सॉरी सीलिंग फैन ना, हमारे घरों में क्या होता है, सीलिंग फैन होता है। ठीक है, और फ्लोर पे हम क्या करते हैं, फ्लोर पे हमारा बेड होता है, राइट। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, सीलिंग का मतलब ऊपर, अपर, अपर वैल्यू। ठीक है, और फ्लोर का मतलब नीचे, राइट। So this is the basic difference between ceil function and floor function. Now next we have square root. Square root gives the square root value of a number. अगर आपको किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्क्वायर रूट। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, m डॉट सील। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना कि अगर आपको कोई फंक्शन यूज करना है अपने पाइथन में, तो सबसे पहले आपको पाइथन सॉरी मॉड्यूल नेम लिखना होगा, फिर डॉट ऑपरेटर यूज करेंगे आप, और फिर उसके बाद फंक्शन नेम और साथ में उसकी जो आर्ग्यूमेंट आप पास कर रहे हो। ठीक है, दिस इज द आर्ग्यूमेंट 2.5, 2.0, 2.1 आर्ग्यूमेंट और नंबर्स यू कैन से, राइट। तो देखो, अगर मैंने यहाँ पर import math किया होता, so every time I have to use math.ceil, 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 but this time I am importing my module
एज m। ठीक है, मैं अपने मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहा हूँ किस नेम से, m नेम से, जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी। ठीक है, अब देखो मुझे यहाँ पे कंप्लीट मैथ नहीं लिखना पड़ रहा है, आई एम जस्ट राइटिंग m डॉट सील, m डॉट सील। और एक बात आप याद रखें कि अगर आपने एक बार इंपोर्ट कर लिया है मैथ मॉड्यूल को, तो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है हर फंक्शन के लिए। सपोज यू हैव इंपोर्टेड योर मैथ मॉड्यूल इन द स्टार्टिंग, ठीक है, नाउ यू डोंट नीड टू राइट import math again for the floor function, you don't need to write math module, import module after for the square root function। ठीक है, तो आपको हर फंक्शन के लिए बार बार import math लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपने एक बार लिख दिया, that's it। okay, now square root gives the value, स्क्वायर रूट वैल्यू ऑफ अ नंबर। तो 25 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो कितना होगा, 5 होगा। 64 का क्या होगा बताओ, 8 होगा। 169 का क्या होता है, 13 होता है। तो इससे हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5, 64 इज 8 एंड 169 इज 13। आप किसी का भी निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपने 20 का किया। ठीक है, हम यहाँ पे 20 कर देते हैं इसको, एंड नाउ सेव योर फाइल, जस्ट रन योर मॉड्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 कहाँ गया, यस 20 का देखिए क्या आएगा। ठीक है, 20 का स्क्वायर रूट ये है, समझ में आया। now next we have what, exp gives the natural logarithm e raised to power raised to argument power। ये जो arg लिखा है, this arg means argument, that is 5। ठीक है, अगर मान लो आपको क्या करना है कि e raised to power जैसे कोई मैथमेटिकल फंक्शन है और उसमें ना आपको यू हैव टू फाइंड e स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए वी हैव m डॉट ई एक्स पी, और ई एक्स पी में हम लिखेंगे 2। तो ये हमें रिटर्न करके देगा e रेस टू पावर 2 की वैल्यू। ठीक है, और e की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 2.7 समथिंग होती है, 2.71, फिर आगे कोई वैल्यू होती है। ऐसे ही जैसे हमारा जो पाई होता है, ठीक है, जिसको हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है, 3.141 आगे हो। ठीक है, तो अगर आपको ई स्क्वायर की मतलब एक्सपोनेंट की कोई वैल्यू लेके आनी है अपने मैथमेटिकल उसमें प्रोग्राम में, तब आप यूज करेंगे ई एक्स पी फंक्शन का। ठीक है, सो m डॉट ई एक्स पी मीन्स दैट वी आर कैलकुलेटिंग ई रेस टू पावर 5। अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ m डॉट ई एक्स पी 5, तो मुझे क्या मिल रहा है, e रेस टू पावर 5 की वैल्यू। अब ये जो e की वैल्यू है ये कितनी है, 2.71 समथिंग, इसकी पावर 5, जो रिजल्ट होगा वो मुझे फाइनल रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, समझ में आया। नाउ जस्ट कंपेयर दिस वैल्यू exp फंक्शन। ठीक है, exp फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखा है, तो 148.41 ये वैल्यू आपकी कैलकुलेट करके आपके पाइथन इंटरप्रेटर ने रिटर्न की है। मतलब द वैल्यू ऑफ e5 इज e रेज़ टू पावर 5 इज 148.41। ठीक है, ऐसे ही अगर जैसे मान लीजिए अगर आपको अपने exp की वैल्यू फाइंड करनी है कि e की वैल्यू क्या होती है और पाई की वैल्यू क्या होती है, फॉर दैट यू हैव टू राइट वैल्यू ऑफ e इज तो लाइक m डॉट e एंड m डॉट पाई। ठीक है, पी आई। सो देखो यहाँ पे e की वैल्यू कितनी है, 2.71 समथिंग है, और ऐसे ही हमारी पाई की तो हम सबको पता है 3.14 होती है। ठीक है, हम सिर्फ 10th में यहाँ तक याद रखते हैं, सिंपली हमें तो यहीं तक याद रखना है। ठीक है, तो अगर आपको e की वैल्यू और पाई की वैल्यू को प्रिंट करना है तो आप क्या लिखेंगे, m डॉट ई एम डॉट पाई, राइट।
नाउ नेक्स्ट वी हैव फैब्स। फैब्स फंक्शन रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू। अब एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका कोई नंबर है, ठीक है, तो ये जो 5 लिखा है ना, ये जो 5 है, ये 5 एक सिंपल नंबर है। जब आप इसको m डॉट फैब्स करेंगे तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू देगा, मतलब ये सेम वैल्यू रिटर्न करेगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपका कोई नंबर नेगेटिव में, इफ योर नंबर इज इन नेगेटिव, देन इट विल रिटर्न द नंबर इन पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है m डॉट फैब्स 5, सो वी आर गेटिंग 5.0। अच्छा, यहाँ पे मैंने गैप्स लिख दिया। नाउ सेव। ठीक है, रन। ये देखिए, ठीक है, तो ये देखो, ठीक है, तो फैब्स फंक्शन की वैल्यू 5.0, और देखो जब हमने नेगेटिव वैल्यू रखी तो हमें रिजल्ट में क्या मिला, पॉजिटिव 5.0। मतलब ये नेगेटिव को पॉजिटिव में रिप्रेजेंट करके देता है। जैसे मैथमेटिकल में हम क्या लिखते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू को हम कैसे लिखते हैं, जिसको हम मोड भी बोलते हैं। ठीक है, मोड कैसे, 5, तो ये रिटर्न देगा 5, रिटर्न करेगा। अगर हम -5 लिखते हैं तो हमें रिटर्न करेगा 5। ठीक है, सेम वो है। ठीक है, तो सेम अगर मोड फंक्शन को आपको परफॉर्म करना है अपने मैथमेटिकल सॉरी पाइथन लैंग्वेज में, फॉर दैट वी हैव अ फंक्शन दैट इज फैब्स। ठीक है, समझ में आया। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज लॉग। अब देखो लॉग, तो आप सबको पता है कि लॉग की वैल्यू क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है लॉग फंक्शन m डॉट लॉग 64 कि मतलब ये जो 64 है ये एक आपकी बेस वैल्यू है, सॉरी बेस आपका 3 है, और जो ये 64 है ये आपकी कौन सी वैल्यू है, नंबर है ये। ठीक है, 64 आपका सिंपल, और ये जो e है ये आपका बेस है। ठीक है, तो इस वैल्यू का मतलब क्या है कि 3 की कितनी रेज टू पावर हम करें कि हमें 64 मिल जाए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको कि 3 रेज टू पावर कितना कि आपको रिजल्ट 64 मिल जाए। जब हम इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, log 64 रेज टू पावर 3 m डॉट log। ठीक है, कि मतलब हम 3 की कितनी पावर करें कि हमें जो रिजल्ट है वो 64 मिल जाए। ठीक है, अगर जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ कि 32 है, 32 रेज टू पावर 2, और यहाँ पे क्या है log। ठीक है, तो 2 रेज टू पावर कितना, 2 रेज टू पावर कितना कि आपको 32 मिल जाए, तो 2 रेज टू पावर 5 होता है, 2 रेज टू पावर 5 तो 32 होता है, तो 5 हमारा क्या आ गया रिजल्ट। तो इसका जो रिजल्ट होगा, अच्छा इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। वैसे ही अगर हम यहाँ पे लिखें जैसे m डॉट लॉग 1024, 1024 मतलब 2 रेज टू पावर कितना कि आपको 1024 मिल जाए। तो 1024 तो कब आता है, जब 2 रेज टू पावर 2 होती है, और 1024 तब आएगा। तो इस पर्टिकुलर ये जो फंक्शन है ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें रिटर्न करेगा 10। ठीक है, तो सेम वे अगर मैंने यहाँ पे लिखा है m डॉट लॉग 64 3, it means what, 3 raised to power how much that we will get 64। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या क्या रिजल्ट मिलता है, आपको यहाँ पे देखो लॉग फंक्शन की वैल्यू मिल रही है 3.78 समथिंग। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 3
रेज टू पावर कितना आया था हमारा 3.78। ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ पे 3.78 करूँगा तो मुझे जाके 64 मिलेगा। तो ये हमारा क्या है, रिजल्ट है। समझ में आया लॉग फंक्शन कैसे वर्क करता है आपके पाइथन लैंग्वेज में। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज पावर। पावर तो आप सबको पता है कि अगर आपको किसी नंबर की पावर फाइंड करनी है तब आप यूज करते हैं, तब आप सिंपली मल्टीप्लाई करते हो उस नंबर को उतने टाइम जितने टाइम पे आपको उसकी पावर चाहिए। जैसे आपको 2 रेज़ टू पावर 3 चाहिए, ठीक है, यू वांट टू कैलकुलेट 2 रेज़ टू पावर 3, सो यू विल मल्टीप्लाई 2 3 टाइम्स। ठीक है, यू विल मल्टीप्लाई 2 itself 3 times, so that you can get the value of 2 raised to power 3. So if you want to calculate the power of a particular number, for that we have a function that is pow। ठीक है, pow pow रिटर्न फंक्शन रिटर्न्स बेस रेस्ट टू exp पावर। ठीक है, ये आपका exp है, ये आपका नंबर है, सिंपल। ठीक है, सो 2 रेज़ टू पावर 3, देखो यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं। 2 रेज़ टू पावर 3 इज 8, 4 रेज़ टू पावर 4 256, 6 रेज़ टू पावर 3 216। अब आपको जिसका भी पावर निकालना है बस आप उसकी वैल्यू यहाँ पे रखें। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जो फर्स्ट नंबर होता है ये हमारा बेस होता है, यू कैन से कि एक सिंपल नंबर है और ये इसकी पावर है। ठीक है, दिस इज नोन एज exp, राइट। सो these are the mathematical functions which are basically used in your Python language or in the Python programs। ठीक है, वो साइन कोस टेन डिग्री और रेडियंस वो हम आगे चल के सीखेंगे जब उनकी एप्लीकेशन होगी। जब हम एक ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने में हम बेसिकली यूज करते हैं हमारे साइन फंक्शन, कोस फंक्शन, टेन फंक्शन। ठीक है, so I will discuss those functions when we will cover graph part, right। समझ में आया। सो अब देखो आपने ये सब सीख लिया that how to import a math module and how we can use mathematical functions। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं that you have to write down the expression with the help of mathematical functions, then how will you do that। ठीक है, अभी हमने mathematical functions को देखा and how we can use mathematical functions। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई बोल दिया जाए कि आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है और उस एक्सप्रेशन को आपको लिखना है विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस, तो आप कैसे लिखेंगे, तो हम वो डिस्कस करते हैं। जैसे सपोज, ठीक है, सपोज हमारे पास एक एग्जांपल लेता हूं मैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे ये एक एक्सप्रेशन है a² + b² + c²। ठीक है, एंड द क्वेश्चन इज राइट द corresponding Python expression। ठीक है, पाइथन एक्सप्रेशन हमें लिखना है। इसके लिए ये हमारा क्या एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब देखो कैसे लिखेंगे पाइथन एक्सप्रेशन। सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर रूट है, तो आपके माइंड में ये आना चाहिए दैट वी हैव टू यूज स्क्वायर रूट फंक्शन इन द एक्सप्रेशन। ठीक है, एंड नेक्स्ट वी हैव a⁻², b⁻² एंड c⁻²। तो इस a⁻² को हम सिंपली कैसे लिख सकते हैं,
ए स्टार ए, बी स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ए स्टार बी, सी स्क्वायर कैन बी रिटन लाइक सी स्टार सी। ठीक है, तो हमने छोटे छोटे पार्ट को देखा। अब एक्सप्रेशंस लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको पता है मैथ मॉड्यूल लिखना है, तो आप लिखेंगे मैथ। अब स्क्वायर रूट निकालना है किसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो आपको लिखना है एस क्यू आर टी, एस क्यू आर टी। नेक्स्ट किसका स्क्वायर रूट निकालना है, देखो स्क्वायर रूट तो इस फंक्शन से निकल जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट अब हमें निकालना क्या है, ए स्क्वायर। तो मैथ पाइथन में आप कैसे लिखेंगे, ये तो आपका सिंपल ए स्क्वायर जो है ये किस में लिखा है, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है हमारा, ये है पाइथन में, ये है पाइथन, पाइथन एक्सप्रेशन। ठीक है, और ये आपका क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो वी हैव टू राइट डाउन पाइथन एक्सप्रेशन, सो वी हैव टू राइट ए स्टार ए प्लस बी स्टार बी प्लस सी स्टार सी। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। सो दिस इज द वे हाउ वी कैन राइट डाउन अ पाइथन एक्सप्रेशन फॉर द करस्पॉन्डिंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लें तो मान लीजिए 2 माइनस वाई ई रेस टू पावर 2y प्लस 4y। ठीक है, ये है, ये आपका मैथमेटिकल फंक्शन, मैथमेटिकल, दिस इज योर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ओके, नाउ व्हाट इज पाइथन एक्सप्रेशन। पाइथन एक्सप्रेशन अब हम लिखेंगे, तो सबसे पहले आपका क्या है, 2 है, तो हम 2 को तो सिंपली लिखेंगे 2। नेक्स्ट वी हैव माइनस ऑपरेटर, we will write minus here. Next we have y variable y. Now next we have y dot e raised to power 2y। तो डॉट के लिए हम क्या यूज करते हैं, मीन्स मल्टीप्लीकेशन के लिए वी यूज स्टार। नाउ वी हैव टू यूज e रेज टू पावर 2y। अब e रेज टू पावर आपको पता है e क्या होता है, e हम कैसे लिखते थे, exp से लिखते थे ना, और exp जब हम लिखते थे तो हम लिखते थे आर्ग्यूमेंट कि e रेज टू पावर क्या होगा। तो इसके अंदर हमें क्या लिखना है, 2y लिखना है, 2y लिखना है ना। और 2y को हम कैसे लिखेंगे, 2y को 2 स्टार y, क्योंकि ये हमारा मैथमेटिकल है और ये हमारा क्या है, पाइथन है। तो सिंपली आपको क्या लिखना है, मैथ डॉट exp, exp का मतलब ये ऑलरेडी इंटरनली कैलकुलेट करेगा। रेज टू पावर में क्या लिखना है, 2y, क्या है 2y, 2 स्टार y प्लस नेक्स्ट हमारे पास क्या है 4y। तो 4y क्या है, 4 डॉट y, तो 4 स्टार y। समझ में आया स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हमारा मैथमेटिकल फंक्शन है और ये हमारा एक पाइथन एक्सप्रेशन है। दोबारा देखिए, 2 हमने 2 लिखा, माइनस ऑपरेटर y। नाउ y डॉट e रेज टू पावर 2y। तो y डॉट e को हम कैसे लिखेंगे, y स्टार। अब e को लिखने के लिए हमारे पास एक मैथमेटिकल फंक्शन है, दैट इज मैथ डॉट exp। और जब हम exp लिखते हैं तो उसमें आर्ग्यूमेंट पास करते हैं उसकी पावर के लिए। ठीक है, तो e रेज टू पावर क्या है 2y। तो ये 2y जो है ये एक मैथमेटिकल फॉर्म में है। ठीक है, लेकिन वी हैव टू राइट डाउन पाइथन एक्सप्रेशन, सो फॉर द पाइथन एक्सप्रेशन वी हैव टू राइट लाइक
2 star y, because in the Python language star means multiplication, right? Okay, so 2 star y. Okay, after that we have plus operator, we have written plus operator. Now next we have 4y, 4y, so 4 प्रोडक्ट y। ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट लिखने के लिए 4 स्टार y। ठीक है, सो दिस इज द वे हाउ यू कैन राइट सम मैथमेटिकल पाइथन एक्सप्रेशन फॉर दी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। ठीक है, आपको एग्जाम में मिलेंगे मैथमेटिकल फंक्शन एंड यू हैव टू राइट डाउन, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द पाइथन एक्सप्रेशन। So I will give some example for the practice so that you can, brush up your mind with all these things. ठीक है, so watch this video carefully। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसको रिवाइंड करके देखें और फिर प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। थैंक यू।